Hello everyone. In this video we will discuss the net income approach of capital structure. Firstly, what is capital structure? Capital structure belongs to finance decision of the financial management, which means proportion of debt and equity. Equity means owner's fund, which includes share premium, share capital, reserves and retained earning. And debt means borrowed capital, which includes term loan, debentures, deferred payment liabilities, and other long term debt. So the term capital is defined as long term fund and it always expressed left hand side of balance sheet. Now, what is the theories of capital structure? There are three theories of capital structure: net income approach, net operating income approach and approach. इन तीनों थ्योरीज को समझने से पहले हमें तीन टर्म्स को समझना जरूरी है: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि ये तीनों टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में इन टर्म्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्म में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनका मीनिंग समझ लें क्योंकि उनका यूज़ हमें थ्योरीज में करना है। तो फर्स्टली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट? Cost of capital is the rate which an organization must pay to the suppliers of capital in the form of interest, like interest paid to debenture holders, interest paid to bankers or any financial institution from where you take loan. So, whatever amount you pay for the procurement of fund is known as the cost of capital. And cost of capital must be minimum, only in that case you can procure the fund for the firm. Next is leverage. Leverage means proportion of debt in capital structure. It is related to financial risk. Generally, firms investing with borrowed money with the objective to acquire potential gains. So, under favorable economic condition, the earning per share increase with leverage. But leverage also increases the financial risk of the shareholder because as an interest, firm have to pay some amount on it, and at the same time they want to earn more with this financial risk. So it is necessary that equity capitalization rate must be greater than cost of debt capital. Only in that case firm earn more and pay minimum. And third one is value of firm, which shows how much amount the firm invests in the total assets. It means value of total assets is known as a value of firm. But here we are discussing capital structure. So whatever amount we find as a value of firm, it must be related to debt and equity. हमें पता है कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और यदि हमें एसेट साइड का टोटल पता है तो हम लायबिलिटी साइड के टोटल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का टोटल इक्वल होता है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें डेब्ट और इक्विटी का रेशो फाइंड आउट करना है, जबकि एक्चुअल में किसी भी फर्म की वैल्यू उसकी टोटल एसेट्स को देखकर फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? द रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ assumptions ऑफ थ्योरीज। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की सारी थ्योरीज मॉडल बेस्ड हैं। मॉडल बेस्ड का मतलब होता है कुछ assumptions जिनको हम पहले से ही मान लेते हैं। उन्हीं assumptions के बेस पर हम थ्योरीज को स्टडी करेंगे और एट लास्ट वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड आउट करेंगे। और ये सारी की सारी assumptions हमारी तीनों थ्योरीज के लिए कॉमन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हैं। नाउ सी वन बाय वन। फर्स्ट, फर्म्स इम्प्लाई ओनली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, डेब्ट एंड इक्विटी। फर्म हमारी दो तरीके की कैपिटल इम्प्लाई करती है, डेब्ट और इक्विटी। इसके अलावा कोई और कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होती है। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन एंड दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास फर्म की टोटल एसेट्स दी होंगी और पूरे टाइम पीरियड में इसमें कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है।
लेकिन हमारे पास टोटल एसेट्स के इक्वलेंट इक्विटी और डेब्ट का रेशियो भी होगा। हम उस रेशियो को चेंज कर सकते हैं बाय सेलिंग डेब्ट टू रीपर्चेज शेयर्स और सेलिंग शेयर्स टू रिटायर डेब्ट। Third one is investors have the same subjective probability distribution of expected future operating earnings. Investors को पता है कि फ्यूचर में जो भी हमारी ऑपरेटिंग अर्निंग होने वाली है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फोर्थ इज द फर्म हैज़ ए पॉलिसी ऑफ पेइंग 100% डिविडेंड। फर्म की पॉलिसी है जो भी अर्न करेगी उसे 100% डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इट मीन्स देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। फिफ्थ इज द ऑपरेटिंग अर्निंग्स ऑफ द फर्म आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। इन्वेस्टर्स को पता है कि फर्म की ऑपरेटिंग अर्निंग ग्रो होने की कोई भी संभावना नहीं है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। सिक्स इज द कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स हमारा उस पर नहीं लगाया जाएगा। सेवन, द बिजनेस रिस्क इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क। हमारा बिजनेस का रिस्क कॉन्स्टेंट है, ये मान लिया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिस्क हमारा इंडिपेंडेंट है, उसके बिजनेस के रिस्क से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सारी के सारी एजम्पशंस हमारी सारी थ्योरीज के लिए कॉमन है, जिनको हमने पहले से ही मान लिया है। नाउ सी व्हाट इज़ द नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच हमारी डेविन टूरिन ने इंट्रोड्यूस करी है। उनके अकॉर्डिंगली द फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू और लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। उनके अनुसार कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का प्रोपोर्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। रिजल्टेंट हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा द यूज़ ऑफ डेब्ट नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स डेब्ट कैपिटल का जितना यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिस्क परसेप्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट मीन्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। जबकि हमारे फाइनेंशियल रिस्क में चेंजेस हो सकते हैं, लीवरेज में चेंजेस हो सकते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा हमारी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से कम होती है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए डेविन टूरिन ने कहा V इक्वल टू S प्लस B। V हमारा शो कर रहा है वैल्यू ऑफ फर्म को, S इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड B इज मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। इक्विटी की मार्केट वैल्यू के लिए उन्होंने फॉर्मूला यूज़ करा नेट इनकम अपॉन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। यहाँ पर ध्यान रखना है हम नेट इनकम अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए डेविन टूरिन ने नेट इनकम पर फोकस करा है। नाउ क्वेश्चन अराइज नेट इनकम होती क्या है। जनरली नेट इनकम को हम उस प्रोपोर्शन से रिलेटेड करते हैं जो केवल हमारे इक्विटी के लिए बचता है। इट मीन्स हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर दें, हम टैक्स का पेमेंट कर दें, उसके बाद जो पोर्शन बचा वो पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन यहाँ पर थ्योरी में हमारे टैक्स का कोई रोल नहीं है, टैक्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए EBIT के बाद डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, जिसको हम EBT कहते हैं, वो अमाउंट हमारा किसका होगा, नेट इनकम के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब वो प्रोपोर्शन हमारे लिए केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। Clear? Now see one problem, how we calculate value of firm through the net income
approach. Problem is, a firm has an expected annual net operating income of rupees 1 lakh and equity rate of 10% and rupees 5 lakh of 6% debt. The value of the firm according to the NI approach. हमसे क्या क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज हमको नेट इनकम अप्रोच कह रहा है. नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच के लिए हमको नेट इनकम चाहिए. कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास क्वेश्चन में सेल दी होती है. सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं. हमारा जो आता है दैट विल बी नोन एज अ कंट्रीब्यूशन. उस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं और जो भी प्रोपोर्शन आता है दैट विल बी नोन एज अ EBIT. वो हमारी क्या होती है? EBIT. उस EBIT में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं. इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो जो भी प्रोपोर्शन बचेगा वो प्रोपोर्शन हमारा EBT होगा. और यही प्रोपोर्शन हमारे किसके इक्विवेलेंट होता है? नेट इनकम के इक्विवेलेंट होता है. अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रहा है? क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रहा है? हमने प्रूव कर दिया कि EBT ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नेट इनकम. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास दे रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 10%. इट मीन्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल भी दे रहा है 6%. हमको डेब्ट कैपिटल भी दे रहा है दैट इज 5 लाख. 5 लाख. हमने डेब्ट कैपिटल को किससे मेंशन करा है? हमने डेब्ट कैपिटल को बी से मेंशन करा है. किससे मेंशन करा है? कैपिटल बी से मेंशन करा है. हमको क्वेश्चन में नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रहा है. नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑलवेज हमारे किसके इक्विवेलेंट होती है? वो हमारे EBIT के इक्विवेलेंट होती है. दैट मीन्स 1 लाख. हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है. कितनी है? 1 लाख. हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ फर्म. क्या हम वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. हमको मालूम है V इक्वल टू ऑलवेज S प्लस B होता है. V इक्वल टू S प्लस B होता है. हमको चाहिए S. B हमको क्वेश्चन में गिवन है. S फाइंड आउट करने के लिए हमारा किसको यूज़ करना है? हमको नेट इनकम को यूज़ करना है. हमारे पास क्वेश्चन में EBIT दे रहा है. EBIT हमारा फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय 100. हमारे पास क्वेश्चन में EBIT गिवन थी दैट इज 1 लाख. दैट इज 1 लाख माइनस इंटरेस्ट. हमारा डेब्ट कैपिटल 5 लाख है और 5 लाख पर इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%. तो 5 लाख का 6% दैट मीन्स 30,000 का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा. हमारे पास नेट इनकम कितनी रह गई? 70,000. हमारे पास नेट इनकम कितनी रह गई? 70,000. हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ S इक्वल टू 70,000 S इक्वल टू 70,000 अपॉन 10 इंटू 100.
हमारे पास एस कितना आ जाएगा 7 लाख। एस कितना आ जाएगा 7 लाख। हमको बी क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख। एस हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर इन दोनों का समेशन कर दें हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ एस इक्वल टू 7 लाख प्लस बी इक्वल टू 5 लाख टोटल इज 12 लाख। हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई 12 लाख। राइट। लेकिन हमें नेट इनकम अप्रोच के अंदर 3 चीज़ों का रिलेशन देखना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म एंड लीवरेज, इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल। हमको वैल्यू ऑफ फर्म तो पता चल गई 12 लाख, लेकिन हम कैसे अपना जजमेंट दें कि नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर को मैटर कर रही है या नहीं, कि कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म पर इफेक्ट आ रहा है या नहीं। क्योंकि डूरेंट ने अपनी अप्रोच में कहा है कि डेब्ट कैपिटल में जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतना ही हमारी वेटेड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। व्हेन कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एज्यूम्ड नॉट टू चेंज विद लीवरेज, रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें गिवन डेब्ट कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करके चेक करना पड़ेगा कि डेब्ट कैपिटल का फर्म की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आया, जिसके लिए हमको टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तभी तो हम बता सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेब्ट कैपिटल को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर हमारी कम हुई या ज़्यादा हुई। क्योंकि उनके अनुसार अगर डेब्ट कैपिटल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। तो इस केस में हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO से डिनोट कर रहे हैं, फॉर्मूला है EBIT अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा EBIT कितना था 1 लाख, जो कि ऑपरेटिंग इनकम के इक्विवेलेंट है। वैल्यू ऑफ फर्म हमने अभी फाइंड आउट करी, दैट इज 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.33%। तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब है? जब हमारे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल का रेशियो कितना है 5 लाख। कितना है 5 लाख एट द रेट ऑफ 6%। अब हमको डूरेंट की अप्रोच को प्रूफ करना है। उसके लिए हमको डेब्ट कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने 3 सिचुएशंस ली हैं। पहली सिचुएशन जो हमने सॉल्व कर ली कि KE हमारी 10% है, KD हमारी 6% है, डेब्ट कैपिटल हमारी 5 लाख है और EBIT 1 लाख है। दूसरी सिचुएशन जिसमें डूरेंट के अकॉर्डिंगली हमारी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं, चाहे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के में चेंजेस हो जाएं। लेकिन हमारा रिस्क परसेप्शन
इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने डेब्ट कैपिटल को 2 लाख से इंक्रीज कर दिया है और EBIT में भी कोई चेंजेस नहीं होने हैं, क्योंकि ये भी हमारी एजम्पशन है, मान लिया गया है कि EBIT हमारी हर केस में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। और तीसरे सिचुएशन में अगेन हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेब्ट को रिमेन सेम रखा है, लेकिन डेब्ट कैपिटल को हमने 2 लाख से डिक्रीज कर दिया है। EBIT एज इट इज रहेगी 1 लाख। अब डूरेंट के अकॉर्डिंगली हमको प्रूफ करना है कि नेट इनकम अप्रोच के बेस पर अगर डेब्ट कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म पर क्या इफेक्ट आता है और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, क्योंकि उनके अनुसार अगर डेब्ट कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होगा तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स सी हाउ वी चेक इट। फर्स्ट सिचुएशन को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल cost of capital, that means KO 8.33% आई थी, राइट। और वैल्यू ऑफ फर्म भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसमें वैल्यू ऑफ फर्म हमारी आई थी 12 लाख। भी किसके इक्वलेंट आया था? हमारा 12 लाख के इक्वलेंट। अब हम सेकेंड सिचुएशन को पहले सॉल्व करेंगे। सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या क्या गिवन है? EBIT, डेब्ट कैपिटल, KD और KA। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? नेट इनकम। नेट इनकम के लिए हमारे पास EBIT गिवन है। EBIT गिवन है। EBIT है हमारा 1 लाख माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज 1 लाख का, सॉरी, डेब्ट कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है 7 लाख का 6%, दैट मीन्स 42,000। माइनस कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा? 58,000। ये हमारा क्या हो गई? शेयर है। दिस इज नोन एज अ EBT, शेयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम नेट इनकम भी कह सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप, हमको मार्केट वैल्यू चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी की मार्केट वैल्यू के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए? नेट इनकम चाहिए और कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए। दैट मीन्स 58,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 5,80,000। कितना आ गया? 5,80,000। नाउ वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए V इक्वल टू S प्लस B। हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किसके इक्वलेंट है? S के इक्वलेंट है। और डेब्ट कैपिटल हमारी किसके इक्वलेंट है? B के इक्वलेंट है। तो S इक्वल टू 5,80,000 प्लस 7 लाख। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज 12,80,000। हमारी फर्म की वैल्यू कितनी हो गई? 12,80,000 रुपये। हमारा डेब्ट कैपिटल का रेशियो इंक्रीज हुआ तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज हो गई। लेकिन अभी हमें चेक करना है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या इफेक्ट आया। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमको क्या चाहिए?
overall cost of capital, that means KO, equal to 1 lakh divided by value of firm 12,80,000 multiply by 100. Multiply by 100. इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा 7.81%. तो increase the debt proportion in the capital structure, the firm is able to increase the value of the firm and lower the overall cost of capital. जब हमारी डेप्ट कैपिटल 5 लाख थी तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.33 थी और वैल्यू ऑफ फर्म हमारी 12 लाख थी. जब हमारी डेप्ट कैपिटल इंक्रीज होकर 7 लाख हो गई तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म 12,80,000 हो गई और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.81 हो गई. नाउ थर्ड सिचुएशन, अगर अब हम डेप्ट कैपिटल को डिक्रीज करते हैं तब क्या हमारा इफेक्ट आएगा. थर्ड सिचुएशन में अगेन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले नेट इनकम. क्योंकि नेट इनकम अप्रोच है उसके लिए हमारे पास क्या गिवन होगा, EBIT कितनी है, 1 लाख. हमारे पास इंटरेस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए. 3 लाख की डेप्ट कैपिटल है, 6% से हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 18,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 82,000. नेक्स्ट हमको चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस के लिए हमको नेट इनकम 82,000 अपॉन कितना है कैपिटलाइजेशन रेट 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 8,20,000. 8,20,000 रुपीज़ हमारी क्या आ गई, इक्विटी कैपिटल आ गई. हमको चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म, हमको चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म के लिए V इक्वल टू S प्लस B. आपके पास S गिवन है, अभी हमने फाइंड आउट किया, 8,20,000 प्लस डेप्ट कैपिटल हमारे पास गिवन थी, दैट इज B 3 लाख. It means total is 11,20,000. 11,20,000 रुपीज़. अब डेप्ट कैपिटल के डिक्रीज होने पर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. अभी हमें इसे चेक करना है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या इफेक्ट आया. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू KO इक्वल टू EBIT
अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी आएगी 9.1%। यह क्या आएगी हमारी 9.1%। तो तीनों सिचुएशन में हमारा क्या क्या डिफरेंस आया। फर्स्ट सिचुएशन में हमारी कॉस्ट ऑफ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 8.33% थी और वैल्यू ऑफ फर्म हमारा 12 लाख था। दूसरी सिचुएशन में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई थी KO, दैट मीन्स 7.81 और वैल्यू ऑफ फर्म हमारी कितनी थी 12,80,000 और तीसरे सिचुएशन में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9.1 एंड 11,20,000। तो अगेन हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जैसे हमारी डेब्ट कैपिटल डिक्रीज हुई वैसे ही हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी डिक्रीज हो गई और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या हो गई इंक्रीज हो गई। तो डूरेंट के अकॉर्डिंगली नेट इनकम अप्रोच के बेस पर वैल्यू ऑफ फर्म और डेब्ट कैपिटल का रिलेशन होता है। अगर डेब्ट कैपिटल हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होगा और रिजल्टेंट हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी।